नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एपीएन लाइव 24 का संवाददाता और संपादक जर्जो तानाथरा। दोस्तों, कुछ वर्षों पहले मोदी जी ने कहा था, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वे बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। दोस्तों, वैसे ही कुछ भाषणों के साथ जो है भारत के इतिहास में एक राजनीतिक परिवर्तन आया, जिसके चलते आज भारतवर्ष के मैक्सिमम स्टेट्स में जो है बीजेपी वाले पॉलिटिकल पावर पर काबिज है। दोस्तों, 2019 में आज ही के दिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण किए थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इलेक्शन में जाने से पहले अनेकों वादा किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, वैसे अनेकों वादे किए थे। दोस्तों, हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार पर अटका हुआ है, स्वास्थ्य पर अटका हुआ है, अपने स्टाइपेंड्स को लेके, इन मुद्दों को लेके अटका हुआ है। और जो कॉमन पब्लिक्स है वो जो है 15 लाख रुपये के वादे पर अटका हुआ है। वे ताक रहे हैं कि 15 लाख रुपया जो वादा किया था बीजेपी सरकार के द्वारा उनके खातों में कब आएंगे। दोस्तों, जनता को 15 लाख पर अटकने दीजिए, मगर हम जो है सरकार को अपने किए हुए वादों से हम भटकने नहीं देंगे। हम जो है जनता के बीच जाएंगे ये पता करने के लिए कि आज से 2 साल पहले अपने मैनिफेस्टो के द्वारा सरकार ने जो जनता के बीच जो वादे किए थे उन पर जो है उन्होंने कितने प्रतिशत उनको जो है कार्यान्वित किया है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं जनता के बीच पता करने के लिए। Yes, I am somehow satisfied with the present government, the Pema Khandu, our chief minister. But then there are certain things that needs to be looked upon, like in the education sectors. The last census says that we are in the second last, before Bihar, when it comes to the literacy rate. So what I believe is our government should emphasize on more in the education sectors, and then because what happens is most of the students they go out either in the south or in the north part of India, and especially in the Delhi I've come across a lot of Delhi students, I mean the Arunachali students. We have a mini Arunachal over there. So that's my personal experience that I've come across. So that's one thing for the education sector. And then also I would like to put up the point on regarding the construction of the roads. Though we have roads in our capital, but then there are districts which has been neglected. So these things, especially in the TLC area, Tirap, Changlang, Longding, these are the areas they are frequently not given attention. So the road condition, because of the road condition, what happened, last year there was this, a woman passed away because there was no proper road condition and she was pregnant. So she was supposed to go to the medical. But since the village is quite far from the main town, the hospital, so she died on the way. So that's a very sad thing. So the road needs to be done. And then when it comes to the youth, we have, our population is growing, and then the youths, we have seen that due to the unemployment, they go into some other stuff, especially in the drugs. And there are videos circulating in the social medias, even I have seen, so it's a very major concern for us. And then about the tourism, you see, tourism, our Arunachal has a very great potential in terms of the tourism. But then as of now, what I see is zero, and then Tawang. Of course, they are a good place. And even I have come across a lot of friends in Delhi while I was in Delhi.
So they only ask about Tawang and Zero, especially the Zero festival music. So it's a good thing that our Arunachal is being known for these things. And I would suggest our government, the state government, to promote some more. And there are other states as well, I mean the districts as well, who have such potentials. So if that kind of importance is given just like the Tawang, then of course it'll be good for the whole of Arunachal. Okay, yeah, that's a very good point actually. Even I was student, so we had to literally wait for the stipends. So back when I was in college in Teju, so I had no money. Actually, also the parent provide us, but then what happens is at times we don't have anything. We are so broke, so we rely on this one stipend. So they say it's just a hearsay that we hear that stipend is going to come, but then when? So we wait for the stipend. So now recently we have seen the video, our education minister, right? So he gave out a statement, साल भर पढ़ाई नहीं हुआ तो stipend क्या मिलेगा? So this kind of statement was not expected from a minister. So though later on he apologized, so that's a very good thing. And I hope कि the government, especially they don't do politics on the student fund, because it's a fund that student has to get, because there are people, we are privileged that we can somehow without stipend we can do a lot of things, but then there are people and families who literally wait for the stipends. And especially in the lockdown we have a lot of problems, and the daily wages and the students from the poor families. So I would pray that the state government please do not play politics on the fund of students, especially in the stipends. Thank you. As a common citizen and a student, अभी currently regular student, हमारा सरकार से बहुत ऊपर नीचे डिमांड नहीं है. We are not demanding the sky from government. इतना चांद तारे तोड़ने के लिए नहीं बोलते, लेकिन we at some point of time and in some issues हम लोग सरकार से एटलीस्ट CMO का ऑफिस से हम लोग चाहता है कि उनसे एक एश्योरेंस आओ. एश्योरेंस से ही चलता है दुनिया. एश्योरेंस आओ कि कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट्स में जब में क्रोनिक केसेस होता है वहाँ में CMO से एटलीस्ट एश्योरेंस आना है. ओवर द लास्ट 2 years हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारा केसेस ऐसे हैं जहाँ पे CMO ऑफिस जो है नम गया है, डेफ एंड डम रहा है. जैसे हमारा रिसेंटली लास्ट ईयर जर्नलिस्ट हफे दादा पर अटैक हुआ, फिज़िकल अटैक हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ. CMO ऑफिस से ना कोई मिनिस्टर से ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर से एक भी वर्ड ऑफ कंडेमनेशन नहीं आया, ना सॉलिडरिटी सपोर्ट कुछ आया, कुछ भी नहीं आया. तो और एक इंस्टेंस में रिमाइंड करना चाहता हूँ. लास्ट ईयर जब ये एक प्रेग्नेंट वुमेन का मर्डर हुआ कंकर नाला में, लिसी रोने वाला केस में, उस पर भी सरकार का कुछ कहना नहीं है. सरकार का कुछ भी एक कंडेमनेशन भी, ना एक ट्वीट, ना एक फेसबुक पोस्ट, ना क्या एक प्रेस रिलीज़ कभी नहीं आया. और एक इंस्टेंस है, वो भी एक बहुत हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी में हुआ है. वो एक हॉस्पिटल है ईटानगर में. वहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है ट्विंस का प्रेग्नेंट वुमेन था, तो उनका भी डेथ हुआ है. तो ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर, ना कोई CM का ऑफिस है, ना कहीं से सरकार से एक भी वर्ड ऑफ कंडेमनेशन या माने ये कंडोलेंस भी नहीं आया है. दिस आर वेरी डिसहार्टनिंग. ऐसे डेवलपमेंट्स नहीं रहना चाहिए सरकार से. कभी कभी सरकार से पब्लिक का बहुत उम्मीद होता है कभी एश्योरेंस में आओ बोल के. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू में भी सरकार ध्यान देने से भी ठीक है. ऐसे सारा केसेस बहुत है जहाँ में सरकार से हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ है, जबकि ऑन दी अदर हैंड दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू ग्रीट ईच अदर ऑन फेसबुक. कहीं में कोई RSS का कोई लीडर का बर्थडे है तो उनको ग्रीट करेगा, कहीं में कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का बर्थडे है या कुछ भी है, डेट एनिवर्सरी, हमेशा ट्विटर में वो रेगुलरली ये करता है, पोस्ट करता है, अपडेट करता है. और कोई तार एक्सपीडिशन हुआ तो उस पर CM कूट जाता है, सारा कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पहुँच जाता है. नामसाई में, दाम्बुक में सब लोग चला जाता है वहाँ में, तवांग में, हर जगह में सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वो लोग हाई कॉर्पोरेट ये बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स लोग हैं. उसके बाद में बॉलीवुड एक्टर आता है तो उनको जगह जगह ले जाने के लिए CM को एस्कॉर्ट करता है, इतना समय देता है. तो इतना समय में से ये समय वेस्ट में जा रहा है. ये समय में से थोड़ा समय निकाल कर पब्लिक को भी देने से ठीक है.
हम लोग का भी स्टूडेंट्स का भी काफ़ी सारा क्राइसिस चल रहा है। जैसे अभी डिजिटल लर्निंग बोल रहा है, हम लोग का जो ऑनलाइन लर्निंग बोल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग फॉर मी पर्सनली फॉर मी एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स लाइक मी इट्स ए हिस्टोरिकल ब्लंडर। यहाँ से कोई सीख नहीं मिल रहा है। यहाँ से ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक फेल्ड वाला ये ड्रीम है, एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने खुद भी देखा है कि विटनेस किया है कि ये हो रहा है, एजुकेशन का स्टैटिस्टिक्स है नीचे नामते जा रहे हैं। तो आने वाला दिनों में देखने के बाद ये है कि ये ऑनलाइन लर्निंग से जो गुजर के जो जाता है, इन फ्यूचर वो लोग का ये एजुकेशन स्टेटस कैसे रहता है, इस पर भी सरकार ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमसे क्रिटिसाइज भी नहीं करे। जैसे कि हम लोग का आरजू में भी देखो, हम लोग को हॉस्टल से बेरहमी से निकाला गया है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है। सरकार का नोटिस के कारण से आरजू का वाइस चांसलर भी इतना ये क्या है सीवियरली एक्ट किया है। एक तरफ में आरजू से भी ये एडवाइस ये है कि ऐसे क्लोजर करना ज़रूरी है। बल्कि देखिए हॉस्टल को क्लोज़ करना, ये सब करना भी, एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज़ करना भी, ये सही मायने में मतलब देखा जाए तो ठीक नहीं है। कोरोना वायरस है, ऑल आर इक्वली, मतलब ये क्या बोलते हैं, सब समझता है कि ये कोरोना वायरस है, बल्कि सब लोग, कोई भी इसको मजाक में नहीं लेते। नो वन इज़ टेकिंग कोरोना वायरस फॉर ग्रांटेड। इनफैक्ट वी आर लर्निंग टू लिव विद द कोरोना वायरस इटसेल्फ। तो स्मार्ट वेज ऑफ ये तरीका है अभी डील करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ letting students live in the campus like other universities are doing, Mizoram, Meghalaya, Tezpur University and various other universities across the northeast and across the country, स्टूडेंट्स को नहीं रहने देकर उनको ज़बरदस्ती निकाला गया है। तो वेयर आर दे प्रमोटिंग एजुकेशन? कैसे करेगा एजुकेशन? जैसे हम अभी जहाँ रह रहे हैं, करंट का इतना प्रॉब्लम है, दिन रात करंट जाता है और नेटवर्क का स्टेबिलिटी भी नहीं है। हम कहाँ से वहाँ में जूम में हम वेबिनार अटेंड करेंगे, कहाँ से हम ऑनलाइन लर्निंग करके बैठेगा? देयर मैट बी सो मेनी केसेस। माने अरुणाचल जैसे जियोग्राफिकली माने डिस्टर्ब वाले एरिया में सारा केसेस होगा। तो कैंपस जैसे सिक्योर जगह से निकाल के अभी कहाँ में वो एजुकेशन प्रमोट करे? एक तरफ में सरकार बोलता है 2021 जो है ईयर ऑफ एजुकेशन है, 1000 करोड़ रुपीस ये क्या है एलोकेट किया है बोलता है। तो कहाँ जा रहा है ये सब? स्टिपेंड में भी लोग हमेशा ह्यू एंड क्राई करना पड़ता है। तो एजुकेशन को सही मायने में प्रमोट नहीं करे, इस पर भी सरकार ध्यान देने से चाहिए। इसका ऊपर भी जब क्राइसिस चल रहा था तो ट्विटर में भी इतना ट्रेंडिंग हुआ, इस पर भी सरकार कुछ ना कुछ एश्योरेंस देने से प्रतीकता। मेरा तरफ से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, सरकार एश्योरेंस लेवल में भी बहुत सारा काम करने की चाहिए। See, first of all, I hardly congratulate to our state government under the leadership of Pema Khandu. देखिए, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यू नो। यहाँ में चीज़ आपका कभी होता है कभी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू थोड़ा हमारा स्टेट में थोड़ा तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, थोड़ा चेंजेस हुआ है। इज़ ए यंग एंड डायनामिक, बट एज़ पर माई ओपिनियन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू थोड़ा आपका फाइनेंशियल क्रंचेस भी है बहुत, सो पहले से चलते आ रहा है। तो उसी का कारण आपका देखिए हर गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसका जो आपका जो चेयर में जो बैठा हुआ है वो ट्राई तो कर सकता है। लेकिन हमारा पेमा खांडू कहीं ना कहीं ट्राई तो कर रहा है, हम ये बात को अप्रिशिएट भी करता है। आपका रिसेंटली आप देखिए विजयनगर भी पहुंचा है वो, तो ऐसे ऐसे जगह में पहुंचा है, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव है। तो अच्छा चीज़ है जो पब्लिक को मतलब आपका पब्लिक को कनेक्ट रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाने से हमारा स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा इशू को हमारा पब्लिक के डोमेन में नहीं लाता है। लाइक बहुत सारा प्रोजेक्ट है आपका, बहुत सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, आप इनॉग्रेशन कर देता है, उसका प्रॉपर वे में आपका चैनलाइज नहीं हो पाता है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। तो आप इसी प्रकार का बहुत सारा चीज़ है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। और आपका हम ऐसे स्टूडेंट, आप तो ये बोलेगा कि आप रिसेंटली आप लोग देखिए स्टूडेंट होने का नाते हम यही बोलना चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट आपका जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, स्टाइपेंड इशू हो गया, ये सब चीज़ को आप सीरियसली लेना चाहिए स्टूडेंट क्योंकि ये चीज़ में आपका हमारा यहाँ में पहले से देखने को मिल रहा है कि आप ये चीज़ हमेशा लेट होता है गवर्नमेंट प्रोसेस में। तो हम सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ये सब चीज़ को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एंगल हम अप्रिशिएट भी करता है स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू को। आपको हर चीज़ तो परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारा चीज़ है कि आप पब्लिक का जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है नहीं हो रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। So first of all, thank you media person. So regarding this
क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर इन शॉर्ट टर्म। देखिए, गवर्नमेंट होता है मतलब हर एक मतलब लीडरशिप का अंदर में काम करने के लिए मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। दैट्स गुड। कुछ कुछ चीज़ अब रिफॉर्मेशन आया भी है और आगे भी आएगा, हम होप करता है अंदर लीडरशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू जी को। तो मेरा तरफ से इतना कुछ उसके लिए वो नहीं रहेगा, पब्लिक डोमेन में नहीं जाते। मैं सीधा मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी मैं थोड़ा सा एक मतलब एजुकेशन लेवल में थोड़ा सा मैं जाऊँगा। तो मेरा एक ऐसा एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम लोग का स्टेट ऐसा वाला एक जगह है कि मतलब अरुणाचल प्रदेश खासकर ये कोविड का चलते अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम सब कुछ को करा रहा है। तो एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा एक मतलब हम लोग को टेक्निकल इशू भी आ रहा है कि मतलब चलो गवर्नमेंट का तरफ से मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह करवाने का मतलब प्रोसीजर तो कर दिया, बट इन केस ऑफ डेट कि इतना हमें मतलब नेटवर्क का मतलब एक्सेसिबिलिटी नहीं है जितना हम लोग स्टूडेंट को मिलना चाहिए ना। ये मेरा एक सोच रहता है और हम खुद ऐसे प्रैक्टिकल मतलब एग्ज़ाम देकर भी आए हैं कि मतलब ऑनलाइन में कैसा होता है। तो टेक्निकल इशू बहुत होता है कि हम लोग यहाँ में इतना कवरेज नहीं कर पाता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हम लोग का बहुत सारा ऐसे ऐसे जगह में भी है कि अभी लॉकडाउन के चलते बच्चों लोग अपना अपना बस्ती भी गया हुआ है। तो बस्ती में कई कई जगह में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ को लेके बहुत कंप्लेंट्स आता है मेरा यहाँ पे। ऐसे मतलब आरजीयू स्टूडेंट होते हुए हम लोग को भी बताता है भाई बहन लोग कि ये सबसे तकलीफ से वो लोग भी गुजरता है। तो ये चीज़ मेरा एक तरफ से भी कहना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को, अगर इफ़ पॉसिबल बाय द करंट पैंडमिक सिचुएशन का मुताबिक आप लोगों की तरफ से एटलीस्ट कुछ अगर आप लोग बाहर से कुछ अगर टेक्नोलॉजी कुछ होता है बोलने से एटलीस्ट फॉर दिस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। एग्ज़ाम में बहुत हार्डशिप बच्चा लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बहुत सारा भाई बहन लोग भी बताने भी आता है और इवन खुद हम लोग भी ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ जगह में टाइम पर मतलब सबमिट नहीं कर पाता है। वो हम लोग का मतलब हम लोग का गलती नहीं है इसमें ना, कि कुछ जगह में नेटवर्क इशू भी हो जाता है। तो ऊपर से हम लोग यहाँ में हमेशा मतलब रेनी सीजन कुछ डिज़ास्टर होते रहता है। तो नेटवर्क को ये सब चीज़ को थोड़ा नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट का यही मेरा एक मतलब छोटा सा एक सोच रहता है कि थोड़ा सा एटलीस्ट वो चीज़ को थोड़ा हैंडल अप कर देने से ठीक रहेगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देता है टाइम पर कभी कभी सबमिट नहीं हो पाते, इसके लिए इतना दौड़ भाग करना पड़ता है। वो थोड़ा सा एक मतलब तकलीफ़ रहता है हम लोग स्टूडेंट के लिए, बिंग ऐसे स्टूडेंट ना, कि हम लोग ऐसे प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा फेस करता है। फिर भी हम लोग लगा हुआ है कि हम लोग कभी वो सब चीज़ को नेग्लिजेंस कभी नहीं किया, हम आज तक नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट जो बोलता है हम लोग फॉलो करते आए हैं। तो अपार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन को छोड़ के बाय द करंट पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए मैं एक ही बात स्टेट गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगा, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है एटलीस्ट मेरा एक सोच है कि मतलब हम लोग ईटानगर कैपिटल जितना हम लोग आपस में बैठा ला मतलब आदमी जो जुरिडिक्शन में बैठा ला, मैं भी हम लोग बाहर का अगर इंटर स्टेट लिंक को अगर अच्छा से प्रोसीजर के मुताबिक अगर ठीक ठाक से चेकिंग वगैरह करता है बोलने से स्टेट में इतना भी शायद पॉजिटिव केसेस वगैरह भी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा एक सोच है। तो बाकायदा वो सब चीज़ को छोड़ के लॉकडाउन वगैरह करवाने का मतलब वो लॉकडाउन करवाने के प्रोसीजर को मतलब मेंटेन करते हुए भी अगर इंटर स्टेट लिंक को अगर आप लोग थोड़ा देखभाल करता है बोलने से हम लोग पब्लिक लोग मतलब पब्लिक ऐसे स्टूडेंट वो सब जितना है हमें मतलब लॉकडाउन का चलते सच में बहुत मतलब ऐसा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। रिसेंटली भी बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट लोग को हम लोग मतलब एक वन ऑफ आवर आपसू मेंबर मिस्टर मेजेता को उसका थ्रू से भी हम लोग कुछ राशन पानी का भी कुछ बंदोबस्त करके ऐसा बहुत सारा चीज़ है। राशन अकेला बोल के नहीं है, मेंटल मतलब डिसेबिलिटीज़ टाइप का मतलब ऐसे कुछ मेंटल डिस्टर्ब भी होता है कि लॉकडाउन में ज़्यादा बैठते रहने से भी। तो ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा इको फ्रेंडली के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से यही चाहता है कि आप लोग बाहर का इंटर स्टेट जो लिंक रहता है उसको थोड़ा आप लोग संभालने से ठीक रहेगा। और खासकर हम देखा जैसे अपना स्टेट अंदर में तो इतना साइड नहीं होना चाहिए अगर बाहर से केसेस नहीं आता है बोलने से। तो यही अपील करता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बाहर का चीज़ को थोड़ा टेक करो। उसका बाद ये लॉकडाउन को थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा रिलैक्सेशन थोड़ा दे देने से भी ठीक है, क्योंकि अभी किसी एग्ज़ाम भी आने वाला है। सो वी आर ऑल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ऐसा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मतलब यूनियन का तरफ से भी हम लोग बहुत सारा ऐसे बच्चा लोगों को कंसलिंग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है बोल के ना, कि प्रॉब्लम फेसेस तो हो रहा है सब किसी का। तो जितना हो सकेगा हम लोग की तरफ से भी मॉडली फिजिकली कुछ चीज़ में मदद कर रहा है। तो अपार्ट ऑफ दैट कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी सब एक ही लाइब्रेरी है। तो ऐसा बहुत सारा मतलब डिपार्टमेंट में है कि मतलब उसका बुक्स वगैरह रिसोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है और एक ही लाइब्रेरी है। तो उसमें थोड़ा तकलीफ होता है कि लाइब्रेरी में हम लोग को मतलब अभी खोला नहीं है। तो ऐसे होगा अभी एग्ज़ाम भी आने वाला हम लोग का, अब ऑनलाइन ही देगा। तो ये सब चीज़ से बहुत इधर उधर माइंड भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। लॉकडाउन चीज़ जो ना थोड़ा सा इसमें एटलीस्ट ये सब चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने से
थोड़ा सा मेरा तरफ से अच्छा रहेगा, और सारा पब्लिक स्टूडेंट का व्यू को भी थोड़ा लेकर देखा था, वो लोग भी बोल रहा था एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम रिलैक्सेशन ऑफ सम ऑफ देश होने से भी एग्ज़ाम भी आने वाला, तो तकलीफ हम लोग प्रॉब्लम फेस कर, यही रहेगा।